Hello students, so today we discussed our unit number 6. So in that unit number 6, the first important question is draw and explain turning movement diagram of a 4-stroke IC engine. So before this question, we study about the turning movement diagram. So turning movement diagram means it is a representation of torque versus crank angle. In 4-stroke engine, that is the angle is required as a 720 degree, because in 4-stroke engine the 4-stroke is required, that the first stroke is suction stroke require 180 degree, then compression, that is a 180 degree, then combustion and exhaust they also require 180 degree. Okay, so in that diagram, look at here, this is a complete turning movement diagram for a 4-stroke engine. Okay, so this is the crank angle, there is a 4-stroke suction, that is a 180, then compression up to 360, then working, and then exhaust is the 720. Means one stroke is 180 degrees, suction, compression, working, and exhaust. And there is a turning moment, okay, or also called as a torque. And this line shows the torque minimum, and this line shows the torque maximum. Okay, so now come to the working. In a first stroke, there is some having a negative loop and positive up to the 180 degree, because when the engine suck the air and fuel from the atmosphere, then inside the temperature and pressure is very low as compared to the atmospheric pressure. Okay, so that time for the suction stroke is required the energy from the engine. Okay, and this second stroke, that is a combustion stroke, there is also a negative loop, because for combustion stroke also it required the energy from the engine. Then when our combustion stroke is expand, that is a working stroke, so here the when fuel is burned, it create a more amount of positive energy. Okay, see here, this is create a more amount of positive energy, that is a positive loop. And again when the our last loop is exhaust, they also require energy from the engine. Okay, so सिंपली बात करते देखो, जो पहला जो स्ट्रोक है सक्शन, तो सक्शन के लिए भी वो एनर्जी कहाँ से लेगा, इंजन से लेगा. उसके बाद जो कॉम्बशन स्ट्रोक है उसको इसके लिए भी एनर्जी वो कहाँ से लेगा, इंजन से लेगा. लेकिन जब वो कंबशन करना मतलब उसको बर्न कर रहा है, तब वो खुद एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. तब जो लूप रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. लेकिन जब वो एग्जॉस्ट करेगा फर्स्ट लूप, तब भी एनर्जी कहाँ से लेगा, वो इंजन से लेगा. ठीक है, लेकिन अभी बात यहाँ पे ये है कि सक्शन, कॉम्प्रेशन और एग्जॉस्ट के लिए वो एनर्जी कहाँ से लाएगा. ओके, तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे जो आपका वर्किंग है, यहाँ पे देखो ये मिनिमम टॉर्क है और ये मैक्सिमम टॉर्क है. सो मिनिमम अप टू जो मैक्सिमम, जो बीच वाला जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी से हम सक्शन, कॉम्प्रेशन और एग्जॉस्ट फ्लो को क्या करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं. देखिए ये जो एनर्जी है कहाँ पे स्टोर रहती है, आपकी फ्लाईव्हील में स्टोर रहती है. फ्लाईव्हील से हम एनर्जी लेके हम सक्शन, कॉम्प्रेशन और एग्जॉस्ट फ्लो को क्या कर सकते हैं, उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम. लुक एट हियर एज अ कंप्लीट दिस. यहाँ पे मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया आपको. ठीक है, then another next question is what is by define fluctuation energy and coefficient of fluctuation energy. So fluctuation energy is defined as the variations of energy above and below the mean resistance torque line are called as the fluctuation of energy. Look at here, this is the above main line and below maximum. This is called as the fluctuation of energy. The coefficient of fluctuation it is called as, it is maybe defined as the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. Okay, this is the expression, this is the maximum fluctuation energy. Next question is coefficient of fluctuation speed. So it is called as the difference between the maximum and minimum speed during a cycle is called the maximum fluctuation speed. The ratio of maximum fluctuation speed to the mean speed is called as the coefficient of fluctuation of speed, and this is the derivation. Next question is what is meant by state the function of governor. So the function of governor is to regulate the mean speed of an engine, and there are variation in the load. Example, when load on an engine increase, the speed decreases. सो गवर्नर का क्या फंक्शन रहता है, वो क्या करता है, इंजन की स्पीड और लोड दोनों को क्या करता है, वो बैलेंस करता है. कभी कभी क्या होता है, अगर समझो इंजन का लोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी. देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई वर्किंग फ्लूइड, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, एक कंडीशन है. और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर
व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीज, अगर लोड समझो डिक्रीज हो गया तो इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड द लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड, तब आपको वर्किंग फ्लूइड कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, एक दो कंडीशन हो गई, एक तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक तो लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, एक तो फिर लोड कम होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट है। सो द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल द सप्लाई वर्किंग फ्लूइड टू द इंजन with the varying load condition keep the mill speed within a certain limits। सो गवर्नर का क्या काम रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, लोड के हिसाब से फ्लूइड को वो सप्लाई करता है, जो स्पीड है उसको क्या करता है, वो कांस्टेंट रखता है। ठीक है, ये फंक्शन गवर्नर का। उसका अंदर स्टेट द सिग्निफिकेंस हॉन्टिंग ऑफ गवर्नर। अब ये हॉन्टिंग ऑफ गवर्नर मतलब क्या आता है, a governor is said to be horned if the speed of the engine fluctuate continuously above and below the mill speed। अगर क्या होगा, आपका जो गवर्नर है उसकी अगर सॉरी जो आपका इंजन है अगर उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब मिनिमम से टू मैक्सिमम तक। सो दिस इज कॉल्ड बाय टू सेंसिटिव गवर्नर विच चेंजेस द फ्यूल सप्लाई बाय लार्ज अमाउंट विद स्मॉल चेंज द स्पीड ऑफ रोटेशन टेक प्लेस। सो क्या होगा, अगर स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो डायरेक्टली कहाँ पे अफेक्ट करेगा, आपके फ्यूल सप्लाई पे अफेक्ट करेगा, और फ्यूल पे क्या हो जाएगा, फिर कम ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीज, अगर हम देखें तो असल जो जो आपका इंजन है उस पर का अगर लोड समझो बढ़ गया तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफ द गवर्नर इज वेरी सेंसिटिव तो गवर्नर स्पीड इमीडिएटली फॉल्स टू इट्स लोएस्ट पोजीशन। फिर उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, आपका जो गवर्नर इमीडिएटली कहाँ पे आ जाएगा, वो डाउन पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वॉल्व वाइट विच सप्लाई द फ्यूल टू द इंजन इन एक्सेस। तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑल है फ्यूल का वो क्या होगा, कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा और लिमिट से ज़्यादा आपका फ्यूल का हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ स्लीव द कंट्रोल वॉल्व विल कट ऑफ द फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर समझो आपका जो इंजन है उसकी स्पीड अगर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो गवर्नर है वो कहाँ पे चला जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे, और तब जो आपका स्लीव है वो क्या हो जाएगा और उसको कट ऑफ कर देगा और उसको इंजन को फ्यूल मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। So this cycle is repeated indefinitely. Such governor may admit either the maximum or the minimum amount of fuel. The effect of this will be cause of wide fluctuation in engine speed, or otherwise the engine will on। So ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड की वजह से, लोड की वजह से, कहाँ पे उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्यूल में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कभी फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो कभी कम जा रहा है। उस पैरामीटर को हम क्या बोलते हैं, हॉन्टिंग ऑफ द गवर्नर। उसका सेंसिटिविटी मतलब क्या आता है, सो सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विवेलेंस स्पीड। इसको क्या बोलते हैं, हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का वर्किंग, ये देखो यहाँ पे हमने फिगर बताई है। सो दिस इज द और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ वैट गवर्नर। सो दिस इज द गवर्नर, दिस स्पिंडल, दिस आर्म, दिस इज फ्लैगबॉल, दिस इज स्लीव्स, दिस इज बेवल गेयर। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इंजन शाफ्ट का कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, वर्किंग सप्लाई को कनेक्ट किया है। ठीक है, क्या होता है कभी कभी अगर समझो इसकी क्या हो गए, देखो यहाँ पे भी वर्किंग लिखते हैं। बैट गवर्नर इज द सिंपलेस्ट एंड ग्रेविटी कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर गवर्नर। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लाई बॉल्स अटैच्ड टू द स्लीव ऑफ द nuclear mass. The upper side of arms are pivoted so that the balls can move upward and downward as they revolve with the vertical spindle. The engine drives the spindle through bevel gears. The lower arms are connected with sleeves. The sleeves is key to the spindle in such a way that it revolves with the spindle. At the same time, it can slide up and down according to the spindle speed. मतलब क्या बोला है वो कि देखो यहाँ पे जो स्पिंडल कनेक्ट है और स्लीव्स है, और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका इंजन शाफ्ट कनेक्ट रहेगा, तो स्पीड के हिसाब से वो क्या करेगा, अप एंड डाउन क्या करेगा, वो मूव करेगा और क्या होंगे, रोटेट करेंगे। द टू स्टॉपर्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम एंड टॉप स्पिंडल टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ स्लीव। और यहाँ पे क्या लगे रखे हैं, स्टॉपर लगे रखे हैं, देखो ए एस एस, ये क्या है, स्टॉप, मतलब इस लिमिट के बाहर आपका गवर्नर नहीं जाएगा। When the load on the engine decreases, the speed of the engine and the angular velocity of the governor spindle increases. The centrifugal force on the ball increases. The change ball move outwards to move upward. मतलब क्या होगा, अगर आपका जो इंजन का लोड है अगर वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ की इसकी स्पीड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये सीधा कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर आपका जो लोड है वो अगर इंक्रीज हो गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, फिर जो आपका फ्यूल है इसको क्या करता है, कम ज़्यादा क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, देखो अगर समझो आपका जो इंजन है उसका अगर लोड बढ़ गया तो ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब आपका ओल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और मैक्सिमम फ्लूइड आगे सप्लाई होगा।
मैक्सिमम फ्लूइड आगे जाने की तरफ से क्या हो जाएगा, फिर स्पीड उसकी कांस्टेंट में चलाएगी, ठीक है। और अगर सेकंड कंडीशन में आपका जो लोड है वो इंक्रीज हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, और नीचे आएगा और वॉल क्या सप्लाई क्या करेगा, बंद करेगा। इससे आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, कंट्रोल में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका पूरा वर्किंग बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। ओके, सो फ्लाईव्हील का फर्स्ट पॉइंट है द फ्लाईव्हील स्टोर द एनर्जी एंड गिव अप एनर्जी व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग साइकिल। फ्लाईव्हील का ये फंक्शन है, क्या करता है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब भी जरूरत होती है हम उसको क्या करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। और गवर्नर क्या करता है, इट रेगुलेट द स्पीड बाय रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड प्राइम मूवर, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है इट हैज नो कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। इसका फ्लूइड की क्वांटिटी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन इसका पूरा उस पर कंट्रोल रहता है। उसके बाद इट रेगुलेट द स्पीड ड्यूरिंग वन साइकिल ओनली। ये क्या करता है, सिर्फ एक साइकिल दौरान इसकी स्पीड क्या होती है, रेगुलेट होती है। लेकिन ये क्या करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी स्पीड क्या होती है, रेगुलेट होती रहती है। उसके बाद इट इज़ नॉट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एवरी प्राइम मूवर, इट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइम मूवर। ये यूज होता है टॉयज में, आईसी इंजिन में, हैंड वॉचेस में, ये यूज होता है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हमेशा पूछा जाता है कि हाई इज द बैलेंसिंग नेसेसरी फॉर रोटेटिंग पार्ट्स फॉर हाई स्पीड इंजन। So, the high speed of engine and other machines is a common phenomenon nowadays. It is therefore very essential that all rotating and discrete parts should be completely balanced as far as possible. If these parts are not properly balanced, the dynamic force are set up. These forces not only increase the loads on the building and stages in the various member, but also produce unpredicted and even dangerous vibration. So these are the drawbacks। क्या करेगा वो, एक तो बेरिंग पे क्या इंक्रीज करेगा, स्ट्रेस या लोड इंक्रीज करेगा, या फिर क्या करेगा, अनप्रेजेंट एंड इवन डेंजरस वाइब्रेशन वो तैयार करेगा। इसलिए रोटेटिंग पार्ट को हमेशा बैलेंसिंग की जरूरत रहती है। सो दिस आर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 6।